Anupriya Pandey, and I, Saloni Tiwari, extend a cordial welcome to our chief guest, Head and Dean, Faculty of Law, our coordinator sir, the ideal faculties, and dear friends. हम अपने मुख्य अतिथि विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष विधि विभाग संग्रह महोदय आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों का हृदय से स्वागत करते हैं। I find immense pleasure in welcoming our honorable chief guest, Vice Chancellor Ma'am. Ma'am, we are really thankful to you for taking the time out of your busy schedule to attend this program. Ma'am, really again, we are highly obliged to you. हमें अपनी माननीय कुलपति महोदया का स्वागत लाइव चल रहा है ना, लाइव चल अपार रहा है। आनंद की अनुभूति हो रही है। महोदया, हम सभी वस्तुतः इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय इस कार्यक्रम हेतु दिया। हम पुनः आपके बहुत आभारी हैं। I want to tell all of you that today we all have gathered here to celebrate the 74 years of the adoption of our Constitution. मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज हम सभी यहाँ अपने संविधान के अपनाने की 74 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। True it is. Making of the Constitution was a joint effort of all the members of the drafting committee and the Constituent Assembly. But the reflection of the wisdom of Dr. Ambedkar on it is apparent. यह सत्य है कि संविधान का निर्माण प्रारूप समिति और संविधान सभा के सदस्यों का संयुक्त प्रयास था, परंतु इस पर डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिमत्ता की झलक स्पष्ट है। Being a member of legal fraternity, the responsibility lies on a higher degree on our shoulders to ensure promotion and protection of the constitutional ideals and values. न्यायिक पृष्ठभूमि का सदस्य होने के नाते सभी संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों के प्रचार और संरक्षण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर अधिक है। In furtherance of this program, we are going to present a mood code based on a fictional story. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में We need your good wishes for the success of this event. हमें इस कार्यक्रम की सफलता हेतु आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। Now, to narrate you all the background of the story, I would like to call Ms. Anuradha Singh and Mr. Hariom Tripathi. करे क्या इसको? कमेंट ऑन करें क्या? ऑफ कर ऑन करें क्या? ऑन तो है, चल रहा है ना। कमेंट नहीं अपीयर हो रहा। कोई आएगा तो कमेंट करेगा। ओ प्रीतम का परिवार व्हाट्स Thank you so much, Anupriya Di and Saloni Di. This is the story of Mr. Preetham. Mr. Preetham's family, who is an industrialist in Pune and who originally belongs to Telangana. His family consists of his wife Pushti, their daughter Preeti, and Pushti's brother Krishna. यह कहानी प्रीतम के परिवार की है जो पुणे में एक सफल उद्योगपति हैं और मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी पुष्टि, उनकी बेटी प्रीति और पुष्टि के भाई कृष्णा शामिल हैं। Mr. Preetham's family occupied the 8th and 9th floor of the Woodside building, in which Krishna usually stayed in his room on the 9th floor. After Krishna's parents' demise, he started living with his sister. Krishna and Preeti developed a liking towards each other. प्रीतम का परिवार वुडसाइड इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल पर रहता था, जिसमें कृष्णा आमतौर पर 9वीं मंजिल पर ही रहता था। पुष्टि ने परिवार में कृष्णा का परिचय अपने भाई के रूप में कराया था। कृष्णा के माता पिता के निधन के बाद वह अपनी बहन के साथ ही रहता था। कृष्णा और प्रीति एक दूसरे को पसंद करने लगे। Pushti wasn't happy with their relationship. She always discouraged them, but they continued it. That's why she sent her daughter to US for higher studies. Preetham wasn't happy with this decision of her. पुष्टि उनके रिश्ते से खुश नहीं थी।
वह हमेशा उन्हें हतोत्साहित करती थी, लेकिन उन्होंने इसे जारी रखा। इसलिए कुश्ती ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। उनके इस फैसले से प्रीतम खुश नहीं थे। On 2nd of August 2020, Pritam got to know the fact that Krishna indeed was the biological son of his wife, which he conceived before her marriage and kept it a secret from her husband. 2 अगस्त 2020 को प्रीतम को इस तथ्य का पता चला कि कृष्णा वास्तव में उसकी पत्नी का जैविक पुत्र था, जिसे उसने अपनी शादी से पहले जन्म दिया था और इसे अपने पति से गुप्त रखा था। Later, after knowing the truth, Pritam came back to home. He felt agitated but remained silent. On the same day, around 10 p.m., both husband and wife were seen arguing with each other over Krishna and Preeti, which was heard by Krishna and witnessed by their maid. बाद में सच्चाई जानने के बाद जब प्रीतम घर वापस आया तो उसे गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहा। उसी रात करीब 10 बजे दोनों पति पत्नी कृष्णा और प्रीति को लेकर बहस करते नजर आए, जिसे कृष्णा और घरेलू सहायिका ने भी सुना। The maid had seen Mr. Preetham holding a gun and threatening Pushti that he is going to kill her and later her son. घरेलू सहायिका ने प्रीतम को बंदूक पकड़े हुए देखा और अपनी पत्नी को धमकी देते हुए भी सुना कि वह उसे और बाद में उसके बेटे को मार डालेगा। At around 11:30 p.m., the maid heard a gun sound followed by the cracking sound of the glass. रात्रि लगभग 11:30 बजे घरेलू सहायिका ने बंदूक की आवाज सुनी और उसके बाद कांच के चटकने की आवाज भी सुनी। At the same time, the neighbor Vaishali saw Mr. Krishna jumping from the 9th floor. In the midway, he coincidentally got hit by a bullet. उसी समय उनकी पड़ोसी वैशाली ने कृष्णा को 9वीं मंजिल से कूदते हुए देखा। उसी बीच संयोग से कृष्णा को गोली लग गई और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। The watchmen have found Mr. Krishna's body was lying on the floor and he was dead. He told everything to the building secretary, who informed the police about it and registered an FIR. चौकीदार ने देखा कि कृष्णा का शव जमीन पर पड़ा था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने बिल्डिंग सेक्रेटरी को सारी बात बताई, जिन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। Thank you so much, Anurag and Bharat, for such a beautiful narration. Now, let's initiate the proceeding of the session's code. Day 1 proceeding, start. राज्य पिता प्रीतम हाजिर हो। ये लड़का The prosecution may proceed. Being the public prosecutor of the case, I, Kaushal Singh, along with my co-prosecutors, Ms. Shreya Singh, Ms. Priya Tripathi, Ms. Hifza Khatun, are here to present the case from the state side. So, please grant us the permission to initiate the proceeding of the case, State versus Preetham. Permission granted. Much obliged. So, in this case, Mr. Preetham is accused of murder of Mr. Krishna and attempt to murder of his wife, Mrs. Kushti. In this regard, a first information report has been lodged in Thana Kodwa, Pune. In the morning of August 2, 2020, Mr. Preetham got aware of the fact that the so-called brother of his wife, Mr. Kushti, is an actually an illicit son of her. He felt resented and decided to take revenge. He pre-planned to murder his wife and her son. He went home and very cunningly waited for the maid to leave the house so that no evidences could be found against him. In the same night,
after the dinner, both husband and wife indulged into an altercation which was witnessed by their maid and also heard by their neighbors. During the argument, the accused passed a statement that he will firstly kill his wife, then herself, which clearly shows the intention of the accused. At around 11:30, Mr. Preetham shot at his wife, but he missed the target, and the bullet hit Mr. Krishna, who died immediately. It is a clear-cut intention of the accused to kill the deceased, and it was followed by an intended act. So, in support of my case, I will present some documentary evidences in the form of the first information report, the police report, the forensic report, and the post-mortem report, and will also present some oral evidences. That's all from my side, Your Honor. I request the Honorable Court to frame charges against Mr. Preetham. Who is representing the defense? Good morning, sir. I am Krishna, counsel of accused with my co-associates, Ms. Abhavya Singh, Mr. Kansha Singh, and Mr. Sayyid Muhammad Fazal, seek the permission of the court to present the facts in defense of my client, Mr. Preetham. Permission granted. Much obliged, sir. My client, Mr. Preetham, is not guilty of murder of Mr. Krishna as he never intended to kill him. It was he himself who jumped from the 9th floor of the building with an intention to end his life, which was witnessed by Miss Vaishali, the resident of the opposite building. A suicide note was recovered from the crime scene which confirms that he wanted to end his life. Sir, my client, Mr. Preetham, being a law-abiding and responsible citizen, followed all the guidelines provided by the Arms Act 1959 and the Arms Rules 2016 and always kept his gun unloaded. The suicide note of Mr. Krishna also affirms it. As per the suicide note, it was Mr. Krishna who loaded the gun to kill his sister Pushpi, who was creating hindrance in relationship of him and Kriti. Later, when he became aware of the fact that actually Pushpi was his mother and was trying to protect him, he felt disgusted from the idea of killing his own mother, so he committed suicide. So, my client never knew that the gun was loaded, nor he intended to kill his wife. It's a mere allegation against my client. The gun got fired negligently while my client just wanted his wife to accept her fault, but she continuously denied. So he picked up his revolver, which he knew to be unloaded, to bring the truth out of his wife by threatening her. The gun got fired negligently while his wife tried to push it away from his hand and the bullet hit the window. So there was absence of intention. There was absence of knowledge, which clearly shows that all the allegations made against my client are baseless. In support of my case, I will present some documentary evidences in the form of the suicide note, the post-mortem report and the forensic report, and will also present some oral evidences. That's all from my side, Your Honor. After considering the facts of the case, I, Utkarsh Singh, the Session Judge of Pune District and Sessions Court, do hereby charge Mr. Preetham as follows. Firstly, that you, on or about the 2nd day of August 2020, at Woodside Building, committed a murder by causing the death of Mr. Krishna and thereby committed an offence which is punishable under Section 302 of the Indian Penal Code 1860 and within the cognizance of this code. Secondly, that you, on or about the 2nd day of August 2020 at Woodside Building, attempted to commit murder of Mrs. Pushti and thereby committed an offence which is punishable under Section 307 of the Indian Penal Code 1860 and within the cognizance of this code. Thirdly, that you, on or about the 2nd day of August 2020 at Woodside Building, threatened your wife and thereby committed an offence which is punishable under Section 506 of the Indian Penal Code 1860
and within the cognizance of this court. मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद आप उत्कर्ष सिंह, सेशन न्यायाधीश, जिला पुणे, आप प्रीतम पर निम्नलिखित आरोप लगाते हैं। पहला, आपने तारीख 2 अगस्त 2020 को पुणे में कृष्णा की मृत्यु कारित करके हत्या की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत। दूसरा, आपने तारीख 2 अगस्त 2020 को पुणे में पुष्टि की हत्या करने का प्रयत्न किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत। तीसरा, आपने तारीख 2 अगस्त 2020 को या उसके आसपास वुडसाइड बिल्डिंग में अपनी पत्नी को धमकी दी और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत। So, Mr. Preetham, whether you plead guilty of the offence charged and or wants to be tried, क्या आप उस अपराध पर जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करते हैं या विचारण किए जाने की मांग करते हैं? I do not plead guilty and demand for trial. Charge read over and explained in Hindi to the accused who pleaded not guilty and want to be tried by the court. अभियुक्त को हिंदी में आरोप पढ़ा गया और समझाया गया जिसने खुद को दोषी नहीं बताया और न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की मांग की। The court is adjourned till the next hearing and the further date of the next hearing will be provided by the leader. It is important to note that the framing of charges does not imply guilt. An accused is presumed innocent until proven otherwise in the court of law. The court will now proceed with the trial phase, during which both the prosecution and the defense will have the opportunity to present the cases. Date of proceeding start. सावधान! न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। राज्य बनाम प्रीतम हाजिर हो। I would invite the prosecution to proceed with the trial. I, Advocate F.M., representing the state side, would like to seek the permission of Honorable Court to call the station house officer of the concerned police station. Permission granted. Much obliged, sir. Orderly, call the SHO please. थाना प्रभारी हाजिर हो। कृपया न्यायालय को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर श्रेया पांडे है और मैं थाना कोंडा की थाना प्रभारी हूँ। आपने ही इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की? जी श्रीमान, घटना की जानकारी मिलते ही मैंने सबसे पहले तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। तत्पश्चात मैंने घटना का सारांश जनरल डायरी में लिखा और इसके बाद मैं अपने कुछ पुलिस कर्मी के साथ वहां घटनास्थल पर पहुंची, जहां मैंने खून से लिपटा हुआ शव देखा। मृत्यु की पुष्टि होने के पश्चात मैंने शव का पंचनामा करवाया और इसे विशेष वाहन से पुलिस संरक्षण में पोस्टमार्टम हेतु मुख्य जिला मुख्यालय भिजवा दिया। तदुपरांत मैंने मौका वारदात से खून आलूदा मिट्टी और मृतक के कपड़े बरामद किए और इसका भी पंचनामा करवाया और फिर उसे अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया। उसके बाद मैंने घटना की रिपोर्ट तैयार की और इसे सक्षम मजिस्ट्रेट को भिजवा दिया और फिर मैंने थाना के उप निरीक्षक आदर्श पांडे को इस केस का विवेचक नियुक्त किया।
When and by whom were you informed about the incident? आपको घटना की सूचना कब तथा किसके द्वारा दी गई? श्रीमान, रात लगभग 11:15 के आसपास मुझे वुडसाइड बिल्डिंग की बिल्डिंग सेक्रेटरी मिस्टर वामशी ने टेलीफोन के माध्यम से यह सूचना दी थी कि उन्हें सोसाइटी कंपाउंड में खून से लिपटा हुआ एक शव मिला है और इसी के आधार पर मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। ठीक है, अब आप जाए। Now, I would like to seek the permission of Honorable Prosecution Witness 1, the building secretary of the building, witness box. Permission granted. Much obliged, sir. Prosecution witness 1 हाजिर हो। क्या आप वुडसाइड बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। कृपया मेरे को अपना नाम बता। जी, मेरा नाम वामसी है और मैं वुडसाइड बिल्डिंग का बिल्डिंग सेक्रेटरी हूँ। तो वामसी जी, 2 अगस्त 2020 की रात आपकी बिल्डिंग में एक घटना हुई। उस वक्त आप कहाँ? जी, मैं अपने घर पे था। कृपया न्यायालय को यह कि आपको इस घटना की सूचना कब और कैसे मिली? जी, मुझे बिल्डिंग के वॉचमैन ने कॉल करके यह सूचना दी कि बिल्डिंग के ग्राउंड पर बिल्डिंग के ही निवासी मिस्टर कृष्णा का शव पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही मैंने घटनास्थल पर मैं भाग कर गया और मैंने इस बात की पुष्टि की। फिर मैंने कोंडवा पुलिस स्टेशन में इस घटना की सूचना दर्ज कराई। To defense want to counter? The prosecution will proceed further. You may leave now. Now, I would like to seek the permission of Honorable Court to call the prosecution witness 2, the investigating officer in the witness box. Permission granted. Much obliged, sir. Prosecution witness 2 हाजिर हो। कृपया न्यायालय को आप अपना परिचय दीजिए। श्रीमान, मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं कोंडवा थाने में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। 3 अगस्त 2022 को मुझे इस केस का विवेचक नियुक्त किया गया। ठीक है। कृपया न्यायालय को आप यह बताएं, घटनास्थल पर पहुंचकर आपने क्या किया? श्रीमान, मैंने घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले बिल्डिंग सेक्रेटरी वामसी से पूछताछ की। फिर मैं बिल्डिंग के 9वें मंजिल पर गया और मृतक के कमरे का निरीक्षण किया, जहाँ मुझे मृतक द्वारा लिखा सुसाइड नोट मिला। तत्पश्चात मैं आखिरी मंजिल पर गया, जहाँ मेरी नजर और भी खिड़की पर पड़ी, जिसको बंदूक की गोली का निशान था। फिर मैंने जब इस बारे में दंपति अग्निक से पूछताछ की, उसमें दंपति की बयान अलग अलग था। उनकी इमेज ने बताया कि 2 अगस्त की रात पति पत्नी बीच में झड़प हुई और उसके बाद उसने बंदूक चलने और खिड़की के शीशे झटकने की आवाज़ सुनी। फिर जब मैंने घर की तलाशी की तो मुझे बंदूक बरामद हुई। इसे मैंने फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। क्योंकि पत्नी और मेड के बयान मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने प्रीतम को कस्टडी में ले लिया। 4 अगस्त 2020 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें मृत्यु का कारण गोली लगना था, और 6 अगस्त को फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जिसमें यह था कि मृतक के शरीर की गोली प्रीतम के बंदूक से ही निकली थी और बंदूक पर प्रीतम की उंगलियों के निशान थे। इस आधार में मैंने विधि संगत कार्रवाई की और विधि की सभी आवश्यकताएं पूर्ण की। That's all from my side, sir. Defense want to counter? महोदय, क्या आप न्यायालय को ये बता सकते हैं कि घटनास्थल पर हॉल की खिड़की में गोली कितनी ऊपर लगी थी? श्रीमान, गोली खिड़की में ऊपर की तरफ लगी हुई है। क्या उसकी हाइट इतनी थी कि वो किसी सामान्य इंसान वाली हाइट को लग सके? नहीं, उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वह किसी समान लंबाई वाले व्यक्ति को नहीं लग सकती थी। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। Your Honor, from the statement of the investigating officer, it is very clear that the bullet was fired accidentally and not intentionally, since the height of the shot was too high for intentionally firing the bullet. Thank you, Your Honor. Prosecution, proceed further. I request the Honorable Court to grant me the permission to call the prosecution witness 3, that is Dr. Aman Solanki, in the witness box. Permission granted. Much obliged, sir.
प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 हाजिर हो। कृपया न्यायालय को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमन सोलंकी है और मैं पूरे इलाज चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर सोलंकी, क्या आपने किसी कृष्णा का पोस्टमार्टम? जी, हमने ही किया था। क्या आप न्यायालय को यह बता सकते हैं कि मिस्टर कृष्णा की मौत? देखिए, 3 अगस्त 2020 की सुबह करीब 9:15 बजे हमारे पास मृतक की बॉडी आती है। कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद हमने 10 बजे से ऑटोप्सी शुरू की। करीब 6 घंटे में हमने ऑटोप्सी पूरी की। अगले दिन हमने इसकी रिपोर्ट केस के विवेचक आर.एस. पांडे को सौंप दी। ऑटोप्सी में पता चला कि मिस्टर कृष्णा की मौत का कारण खोपड़ी में गोली लगा था। Your Honor, please note that the death of Mr. Krishna is the bullet shot in the head. That's all from my side. If the defense wishes to counter, the opportunity is open. तो डॉक्टर अमन सोलंकी जी, क्या कोई और भी इंजरी थी मिस्टर प्रीतम की बॉडी पे? देखिए मैडम, वैसे तो हम बहुत पोस्टमार्टम करते हैं, तो क्या मैं एक बार फाइल देख लूँ तो मैं बता सकता हूँ कोई और इंजरी थी कि नहीं। डॉक्टर साहब को फाइल दीजिए। ये लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, कुछ और भी इंजरी थी, जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड को गहरी क्षति थी। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो शरीर का बेहद संवेदनशील अंग होता है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि मृत्यु का कारण इन्हीं दोनों में से कोई एक हो, लेकिन गोली लगने से ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि मृत्यु का कारण गोली लगना ही है? ये संभव है। अच्छा, अगर मृतक को गोली नहीं लगी होती तो उतने ऊपर से गिरने के बाद मृतक के बचने की क्या संभावनाएं होती? देखिए, 9वीं मंजिल से गिरने के बाद किसी भी व्यक्ति की बचने की संभावना ना के बराबर होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं। Your Honor, as per the examination of the learned, or we can say competent medical officer, there is possibility that there may be some other reason such as breakage of spinal cord or traumatic brain injury as a cause of death. Thank you, Your Honor. Prosecution, proceed further. Now, I, Advocate Priya Tripathi, would like to seek the permission of Honorable Court to call prosecution witness 4, that is the forensic expert who conducted the forensic test of evidence of the case. Permission granted. Much obliged, sir. प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 हाजिर हो। कृपया न्यायालय को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर दृष्टि आडवाणी, महाराष्ट्र न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला की निदेशक हूँ। मैम, आपने ही इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की है। कृपया आप न्यायालय को ये बताइए कि घटनास्थल पर जो बंदूक बरामद हुई थी, उस पर किसकी उंगलियों के निशान थे? श्रीमान, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के अनुसार घटनास्थल से बरामद बंदूक पर मिस्टर प्रीतम की उंगलियों के निशान थे। प्लीज बी नोटेड योर ऑनर। तो क्या जो गोली मृतक के शरीर से मिली थी, वो वही गोली थी जो मिस्टर प्रीतम की बंदूक से चली थी? जी हाँ। योर ऑनर, the fingerprint on the gun confirms that it was Mr. Pritam who fired the gun, and the statement of forensic expert clears it that Mr. Krishna died because of the bullet fired by the accused Pritam. Defense may counter. महोदया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम सीन पर जो गोली का ब्लैंक मिला था, क्या उस पर भी मिस्टर प्रीतम की उंगलियों के निशान थे? जी नहीं, उस पर मिस्टर प्रीतम की उंगलियों के निशान नहीं थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस पर किसकी उंगलियों के निशान थे? जी, उस पर मृतक की उंगलियों के निशान थे। थैंक यू। You may go now. Your Honor, please be noted that there was no fingerprint of my client on the blank
Prosecution, proceed further. Now, I will seek the permission of Honorable Court to call prosecution witness 5, the maid working in Mr. Preetham's house in the witness box. Permitted. Much obliged, sir. Prosecution witness 5, हाजिर हो। जय महाराष्ट्र साईं, जय महाराष्ट्र मैडम। तो आप अभियुक्त के घर काम करती हैं? हो मैडम। कृपया न्यायालय को अपने बारे में बताइए। सर, माई सेल्फ चौथी भाग मारे, लेकिन आज तक मैंने एक भी भाग नहीं मारे। पिछले 7 साल से। सुमति, आप घटना वाली रात कहाँ थी? घर पे। किसके घर पे? मेम साहिब के घर पे। तो सुमति, घटना वाले दिन क्या हुआ? इस बारे में न्यायालय को बिना डरे बताइए। हो, तो घटना वाले दिन मैं सुबह साहिब के घर पहुंची, तो घड़ी की सुई 9 बजा रही थी। साहिब काम पे जा चुके थे। फिर मैंने अपना काम किया, झाड़ू लगाया, बर्तन धोया, मैडम की तो साड़ी जलाई, 2 प्लेटें तोड़ी, तब तक शाम हो गई। उसके बाद साहिब घर आए, बड़े गुमसुम थे। ऑर्डर, कृपया कोर्ट की मर्यादा को बना के रखें। बेचारी ने पानी भी नहीं मांगा, मैंने दिया भी नहीं। 9 बजे के करीब मैंने खाना पीना लगाया और मैं अंदर चली गई अपना काम करने। फिर थोड़ी देर बाद मेरे घर के झगड़ने की आवाज आई मेम साहिब के साथ। तो मैंने जाके देखा तो साहिब के हाथ में बंदूक थी। वो मेम साहिब को कुछ कह रहे थे। मैं तो बहुत घबरा गई। वो मेम साहब से कुछ कहती रहे थे या उन पर चिल्ला रहे थे? दोनों ही आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन साहिब को ज्यादा गुस्से में थे, ज्यादा चिल्ला रहे थे। तो जब साहब चिल्ला रहे थे, सुमति आपने सुना था कि साहब क्या कह रहे थे? वो मैडम को धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुमको और तुम्हारे बेटे को दोनों को मार डालूंगा। Your Honor, it please be noted at this point that the accused, Mr. Preetham, had intention to kill Mrs. Kusti and her son, Mr. Krishna. तो सुमति, जब आप वहीं पर थी, तो क्या आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? जी मैडम, जब मैं घबरा के अंदर भाग गई थी, तो मैंने गोली चलने की भी आवाज सुनी और शीशा चटकने की भी आवाज सुनी। ठीक है, that's all. जय महाराष्ट्र सर, जय महाराष्ट्र मैडम, थैंक यू। Prosecution will proceed now. Now, I would like to seek the permission of Honorable Court to call prosecution witness 6, Mrs. Kusti, in the witness box. Permission granted. Much obliged, sir. Prosecution witness 6, हाजिर हो। कृपया न्यायालय को अपना नाम और अभियुक्त के साथ अपना संबंध बताइए। सर, मेरा नाम पुष्टि है और मैं अभियुक्त की पत्नी हूँ। पुष्टि, जैसा कि आपके मेड ने बताया कि आपके पति आप पर चिल्ला रहे थे और आपको मारने की धमकी भी दे रहे थे, क्या ये बात सच है? इस बारे में न्यायालय को बताइए। सर, 2 अगस्त की शाम जब प्रीतम घर आए तो वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे और चुपचाप बैठे थे। मेरे बहुत पूछने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं बोला और खाना खाने के बाद अचानक से मुझसे मेरे और कृष्णा के संबंध में पूछने लगे, जिससे मैं चौंक गई। फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि सच बताओ, कृष्णा तुम्हारा बेटा है ना? उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने ना कह दिया। फिर वो और उग्र हो गए और बंदूक निकालकर मुझे मारने की कोशिश की। पुष्टि, तो क्या मिस्टर प्रीतम ने गोली जानबूझकर चलाई थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Objection overruled. जी, बंदूक निकालकर धमकी दी कि मुझे और फिर कृष्णा को मार डालेंगे। फिर इन्होंने मुझ पर गोली चला दी, जिससे मैं बाल बची। It please be noted, Your Honor, that the statement of Mrs. Kusti clearly state that Mr. Preetham had intention to kill his wife and Mr. Krishna. The intention which is required to constitute any offense is present in this case. That's all from my side, Your Honor. If the defense wishes to counter, the opportunity is open. Not at the moment, Your Honor. Prosecution, proceed further. Your Honor, as I examine all my witnesses, now I will seek your permission to examine Mr. Preetham. Permission granted.
प्रीतम, आप प्रीतम को कैसे जानते थे? न्यायालय को बताइए। शादी से घटने वाले दिन तक मुझे ये पता था कि कृष्णा मेरी पत्नी का छोटा भाई है। शादी से घटने वाले दिन, इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि शादी के ही समय से मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों ने मुझे अंधेरे में रखा। मुझे नहीं पता था कि जो इंसान इतने वक्त से हमारे बीच इसका भाई बन के रह रहा है, वो असल में इसका भाई नहीं बल्कि इसकी नाजायज औलाद थी। प्रीतम, जब आपको इतनी बड़ी बात पता चली तो आपको गुस्सा तो आया होगा? नहीं। जब आपको इस समय इतना गुस्सा आ रहा है तो क्या उस समय बिल्कुल नहीं आया था? जी आया था। It's please be noted your honor. जैसे ही आपको ये पता चलता है कि गत वर्ष से जो आपके साथ रह रहा है वो आपकी पत्नी का भाई नहीं बल्कि उसी की नाजायज औलाद है, तो आपके मन में बदले की भावना आती है और आप षड्यंत्र रचते हैं जिसके तहत आप घर को शांति से अपने मेड के वापस जाने का इंतजार करते हैं, और जब आपको यह आभास होता है कि अब मैदान साफ है तो आप अपना भूमि खेल शुरू करते हैं। Objection sustained. That's all from my side, Your Honor. Thank you, Your Honor. Mr. Preetham, according to the prosecution, there was an argument between you and your wife on the day of the incident, and in that argument, you got enraged and fired at her. What do you have to say in this regard? मिस्टर प्रीतम, अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दिन आपके और आपकी पत्नी के बीच बहस हुई थी और उस बहस में आप आग बबूला हुए और आपने उन पर गोली चला दी। इस पर आपका क्या कहना है? श्रीमान, हमारे बीच बहस जरूर हुई थी, लेकिन गोली मैंने जानबूझकर नहीं चलाई थी। An FIR has been lodged against you under FIR number 172 by 2020. Do you have any knowledge about it? आपके ऊपर FIR नंबर 172/2020 से मुकदमा दर्ज है। आपको इस बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है कि मुझ पर मुकदमा दर्ज है, मगर ये मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है। Prosecution witness 6, Ms. Pushti, has also given a statement that on the day of the incident, you had firstly threatened to kill prosecution witness 6 and then the deceased. And as a result of that, you had fired at prosecution witness 6. What do you have to say in this regard? अभियोजन गवाह 6 पुष्टि ने बयान दिया कि आपने घटना के एक दिन पहले अभियोजन गवाह 6 और फिर मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी, और उसी के परिणाम स्वरूप आपने अभियोजन गवाह 6 पुष्टि पर गोली चलाई। इस संबंध में आपको क्या कहना है? हाँ, झगड़े के बीच मैंने गुस्से में आके ऐसा जरूर कहा था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। Prosecution witness 5 had also given a statement that there was a fight between you two on the night of the incident. Do you tell the reason for that? अभियोजन गवाह 5 ने भी ये बयान दिया था कि घटना वाली रात आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। क्या आप उसका कारण न्यायालय को बता सकते हैं? घटना वाले दिन मुझे यह पता चला था कि मेरी पत्नी, जिसे अपना छोटा भाई बता रही है, वो असल में इसकी नाजायज औलाद है। मैंने जब ये बात अपनी पत्नी से पूछी, वो चिल्लाने लगी और हमारा झगड़ा पड़ गया। A charge sheet has been forwarded against you under section 302, section 307 and section 506 of the Indian Penal Code 1860. What do you have to say in this regard? आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 506 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? मुझ पर लगाए गए सारे मुकदमे बेबुनियाद हैं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ साहब। Do you have to say anything in your defense? क्या आपको अपनी सफाई साक्ष्य में कुछ कहना है? श्रीमान, मैंने गोली जानबूझकर नहीं चलाई थी। मैंने तो सिर्फ बंदूक पुष्टि को धमकाने के लिए उठाई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लोडेड है। मैं बेगुनाह हूँ साहब। क्या आपको अपने बचाव में और कुछ नहीं कहना? जी नहीं श्रीमान। The court is adjourned till the next hearing, and the further date will be provided by the leader.
trials are not just about proving guilt. They are about revealing the truth. The accused has the right to be heard, the right to present evidence, and the right to confront witnesses, and which we will see during the upcoming proceeding. Now, let's initiate the day 3 proceeding. सावधान! न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। राज्य बनाम प्रीतम हाजिर हो। Defense may proceed. I, Abhavya Singh, would like to seek the permission of this honorable court to call the witnesses. Permission granted. Much obliged, sir. Firstly, I would like to call defense witness 1, the watchman in the witness box. Permitted. डिफेंस विटनेस 1 हाजिर हो। राम राम साहब। सबसे पहले तो आप अपना नाम न्यायालय को बताइए। I am Murthy, I am the watchman at Woodside building. ओह, इंग्लिश। हाँ सर, हमको भी आती है, क्या है ना, हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा। तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? अरे महाराज आप नहीं मानेंगे, हमने इंजीनियरिंग से मास्टर किया है। Objection, Your Honor. Relevance. Objection sustained. Please ask the questions related to the case only, and you please maintain the decorum of the court. वुडसाइड बिल्डिंग में जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या जानते हैं? न्यायालय को बताइए। क्या ना साहब, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तब तक वैशाली मैडम भागते भागते आई, तो बहुत घबराई जैसी थी। हमने पूछा कहाँ हो गया मैडम? मैडम बोली उनके सामने वाली बिल्डिंग के 9th फ्लोर से किसी को कूदते हुए देखा। अभी आपने बोला वैशाली मैडम, जरा बताएंगे वैशाली मैडम कौन है? ओह मैडम है हमारी। अरे वैशाली मैडम बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। फिर वैशाली मैडम को बताने के बाद फिर आपने क्या किया? हम तुरंत घटना वाली जगह पे रीच किए और हमने देखा कृष्णा भैया जमीन पर लेटिंग डाउन है और उनके चारों तरफ खून ही खून है। हमने तुरंत सेक्रेटरी साहब को कॉलिंग किया और सारी टाइमिंग बताई। फिर तुरंत सेक्रेटरी साहब इनकमिंग हुए, हम अपने ड्यूटी पे आउटगोइंग हो गए। अच्छा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Your Honor, प्राचीन काल से ऐसा बोलते आ रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? One eyewitness is better than 10 hearsay evidence. I would request to call defense witness 2, Miss Vaishali, Mr. Preetham's neighbor in the witness box. Permission granted. डिफेंस विटनेस 2 हाजिर हो। सबसे पहले आप अपना नाम न्यायालय को बताइए। मेरा नाम वैशाली है और मैं ड्रीमना बिल्डिंग जो कि वुडसाइड बिल्डिंग के अपोजिट है उसमें रहती हूँ। तो मिस वैशाली, 2 अगस्त की रात को आपने क्या देखा? उस रात मैं डिनर करने के बाद जब बालकनी पर टहलते हुए अपने फोन पर बात कर रही थी तो मैंने अचानक से नोटिस किया कि रेलिंग पर कोई खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती उसने वहाँ से छलांग लगा दी। उसके बाद आपने क्या किया? चीखा, चिल्लाया, किसी को बुलाया या कुछ और किया? उसके बाद मैं घबरा कर नीचे भागी और मैंने जाकर सारी बातें वॉचमैन को बताई। Your Honor, after hearing Miss Vaishali, it can be concluded that Miss Vaishali is the eyewitness as we have seen him jumping from the building. How can my client kill someone who already wanted to end his life? We can see the intention is completely absent. Objection, Your Honor. Prosecution seeks permission to make counter hearsay. Permission granted. Much obliged, sir. तो मिस चार्ली, अभी आपने कहा कि वुडसाइड बिल्डिंग की 9वीं मंजिल के रेलिंग से आप किसी को कूदते हुए देखे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है वो मिस्टर कृष्णा ना हो, कोई और हो। नहीं, वो मिस्टर कृष्णा ही थे क्योंकि 9वीं मंजिल पर पिछले 1.5 साल से वही रह रहे थे और नीचे जाकर देखने पर मुझे उनका ही शक दिखा था।
अब आप जा सकते हैं। That's from my side, sir. Defense proceed further. पिता के लिए प्यार की पहली पहचान बेटी होती है। उनके हर ख्वाब का अहम किरदार बेटी होती है। With this, I would like to call my next witness, Miss Kriti, Mr. Pritam's daughter in the witness box. Permission granted. डिफेंस विटनेस 3 हाजिर हो। सबसे पहले आप अपना नाम तथा अभियुक्त के साथ आपका क्या संबंध है, न्यायालय को बताइए। मेरा नाम प्रीति है और मैं इनकी बेटी हूँ। आप क्या करती हैं? मैं यूएस में रहती हूँ और इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हूँ। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी यूएस से हुई है? सॉरी, व्हाट? शिक्षा दीक्षा, योर प्राइमरी एजुकेशन। ओके, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यही इंडिया से पूरी की है और फिर मैं हायर स्टडीज के लिए यूएस चली गई। तो क्या ये आपका सपना था बाहर जाकर पढ़ाई करने का? खामोश क्यों है? आपके लहजे में इतनी खामोशी? बोलिए। नहीं, मुझे जबरदस्ती भेज दिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, भेज दिया गया, वो भी जबरदस्ती। क्यों? किसने आपके साथ जबरदस्ती की? न्यायालय को बताइए। मेरी माँ को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं घर से कहीं दूर जाकर पढ़ाई करूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यूएस भेज दिया। तो क्या आपके पिताजी भी यही चाहते थे? नहीं, पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं घर से कहीं दूर जाऊँ। फिर आपकी माता जी आपको दूर क्यों भेजना चाहती थी? क्या आपत्ति थी उनको? माँ तो माँ होती है, फिर कहाँ गई उनकी ममता? वो क्या वो? बोलिए, घबराइए नहीं, आराम। वो मेरी माँ को मेरे और कृष्णा के बीच बढ़ती नजदीकियाँ पसंद नहीं थी। नजदीकियाँ? कैसी नजदीकियाँ? मेरे और कृष्णा के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। अच्छा, इस वजह से आपकी माताजी को आपत्ति थी। तो क्या इस बात से आपके पिताजी को कोई आपत्ति थी? नहीं, पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। मेरी हर खुशी में उनकी खुशी थी। वो बहुत ही मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके कहने का मतलब है मिस्टर प्रीतम, माय क्लाइंट मिस्टर प्रीतम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सरल, सहज और शांत व्यक्तित्व के इंसान हैं। तो क्या आपने आज तक कभी उन्हें गुस्से में देखा है? Really? Your Honor, after hearing Miss Kriti, it can be concluded that my client Mr. Pritam is a very humble and a kind-natured person. He has no bitterness for Krishna nor his relation with Miss Kriti. Thank you. That's all from my side. Defense proceed. I, Akansha Singh, the defense counsel, I would request the Honorable Court to grant me permission to cross-examine the prosecution witness 5, the maid. Permission granted. Much obliged. Prosecution witness 5 हाजिर हो। जय महाराष्ट्र साहेब, जय महाराष्ट्र मैडम। जैसा कि आपने न्यायालय को बताया, आप मिस्टर प्रीतम के घर पिछले 7 सालों से काम कर रही हैं। तो आपके अनुसार पति पत्नी के संबंध कैसे हैं? क्या उनमें अक्सर झगड़े होते हैं? नहीं मैडम, साहब और मेम साहब तो बड़े प्यार से रहते हैं। हाँ, कभी थोड़ी थोड़ी खिटपिट होती है दोनों में, लेकिन जब से प्रीति बेटा गई है तब से ज्यादा ही लड़ाई होने लगी है। ये बताइए, आपके साहब का व्यवहार आपके प्रति कैसा था? साहब तो खूब चांगला मानुस आहे, बड़े नेकदिल इंसान है, कभी मुझे किसी बात के लिए नहीं टोका। तो इसका मतलब ये है कि आपके साहब एक सज्जन, नेक और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। एकदम मैडम, मेरे साहब तो बड़े नीच इंसान है। नीच? हाँ, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना अच्छे इंसान को, नीच। You mean nice? हाँ, सेम इतने सज्जन व्यक्ति होने के बावजूद भी वो बात बात पर बंदूक निकाल लिया करते थे। नको मैडम, मेरे साथ तो बहुत शांत इंसान है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि इतना गुस्सा तेवर दिन। ये बताइए, जब आपके साहब चिल्ला रहे थे तो मैडम क्या कर रही थी? जरूर वो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होंगी। नहीं मैडम, मेम साहब भी चिल्ला रही थी, दोनों ही झगड़ रहे थे आपस में। Point to be noted, my lord. My client was being equally provoked.
It was not only Mr. Preetham who was fighting, but also Mrs. Pushti, who was shouting back at him. जैसा कि आपने न्यायालय को बताया, आपने मिस्टर प्रीतम को बंदूक से धमकाते हुए देखा, तो क्या आपको डर नहीं लगा? लगा ना मैडम, बहुत डर लगा। मेरे को तो इतना डर लगा कि मैं उल्टे पाँव की जेल में भागी थी। क्या? इसका मतलब ये है कि आपने गोली चलते नहीं देखा? नहीं मैडम, मैंने गोली चलते नहीं देखा, मैंने सिर्फ आवाज सुनी। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। हाँ, जय महाराष्ट्र साहिब, जय महाराष्ट्र मैडम। Your Honor, it can be clearly concluded from a statement that she is not the eyewitness of the crime. She only witnesses the sound of the bullet. She is totally unaware of the fact that the bullet, who actually shot the bullet was shot in negligence. That's all. वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीती हो, उससे बेहतर ढंग से अपनी बातों को कोई व्यक्त नहीं कर सकता. With this, I would request the Honorable Court to call the most relevant witness of this case, that is the prosecution witness 6, Mrs. Pushti, in the witness box. Permission granted. Much obliged. Prosecution witness 6, हाजिर हो। There's always two sides of the story, out of which we have to find which one is true. We already heard the one side of the tale. Now it's time to hear another. तो मिसेस पुष्टि, आपका और आपके पति के बीच का वैवाहिक संबंध कैसा था? हम दोनों बहुत हंसी खुशी रहते। ये बताइए, आपने अपने पति तथा बेटी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को बाहर पढ़ने क्यों भेजा? क्योंकि मुझे कृष्णा और कृति की बढ़ती नजदीकियां नागवार थी। आखिर क्यों नागवार थी? क्या रिश्ता था आपका मृतक से? बताइए, मौन क्यों है? क्योंकि कृष्णा बेटा था मेरा। तो क्या ये बात आपके पति को पता थी? नहीं पता थी। ऐसे प्रश्नों को सुनकर अक्सर आप झल्ला जाती हैं, जैसा कि अभी हम सब ने देखा। उस रात भी आपके पति ने ऐसे ही कुछ सवाल करना चाहे थे ना आपसे। ये बताइए, घटना की रात ऐसा क्या हुआ कि आपके पति आपसे झगड़ा करने लगे? सर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस रात जब वो आए तो मुझसे नाराज थे और खाना खाने के बाद मुझसे मेरे और कृष्णा के संबंध में पूछने लगे। इसी बातचीत के दौरान या मुझ पर चिल्लाने लगे, मुझे धमकी दी और मुझ पर गोली चला दी। अच्छा, झूठ बोल रही है। तो क्या सिर्फ आप वही चिल्ला रहे थे? मिस्टर प्रीतम, कृपया शांत रहें, आपको उचित अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का। डोंट इंटरप्ट द प्रोसीडिंग्स। अच्छा, तो क्या सिर्फ वही चिल्ला रहे थे? हाँ, मैं उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपकी घरेलू सहायिका ने तो कुछ और ही बताया। उनके अनुसार तो आप भी चिल्ला रही थी। हाँ, झगड़े के दौरान मैं भी थोड़ा गुस्से में आ गई थी। तो मिसेस पुष्टि, न्यायालय को ये बताइए, क्या आपके पति मिस्टर प्रीतम अपनी बंदूक को हमेशा लोड करके रखते थे? नहीं, उनकी गन हमेशा अनलोडेड रहती थी। तो आप इतनी श्योर कैसे हैं कि वो आपकी जान ही लेना चाहते थे? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे धमकी दी और फिर मुझ पर गोली भी चलाई। अगर वो आपकी जान ही लेना चाहते थे, तो उन्होंने दूसरी गोली क्यों नहीं चलाई? बताइए, क्यों मौन रह के न्यायालय का समय बर्बाद न करें? इन्होंने दोबारा मुझ पर गोली चलाई, जिससे मैं बच गई और मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। So, the demeanor of Mrs. Pushti needs to be noted. As per the documentary evidences produced by the forensic expert, only one bullet was fired from the gun. This proves that Mrs. Pushti is completely lying and trying to hide the truth. Your Honor, isn't it quite normal to show anger after knowing such a life-changing fact? But the main thing here was the reaction of Mrs. Pushti, who was continuously denying to accept the truth and was shouting back at her husband, which leads to the provocation. Because of which my client Mr. Preetham took off his gun with the only intention of threatening her. He has no knowledge of his gun to be loaded. So, my client never intended to kill Mrs. Pushti. This shows the clear absence of intention as well as knowledge. The bullet was shot in negligence during the clash of arguments. And here the most important and unanswered fact is that if my client Mr. Preetham wants to kill Mrs. Pushti, why didn't he shot another bullet on her, as the first bullet missed his target? If he so desperately wants to kill her, as she claims, he must have fired another bullet on her. That's all, Your Honor.
Now I would invite both the counsels for their final arguments. The prosecution, you may proceed. Your Honor, जब अक्यूज प्रीतम को ये पता चला कि मृतक यानी मिस्टर कृष्णा इनकी पत्नी का भाई नहीं बल्कि नाजायज बेटा है, तो इन्होंने बदला लेने का सोचा। योर ऑनर, यही बदला अक्यूज का मोटिव था और इसी मोटिव ने उस इरादे को बढ़ावा दिया। Objection, Your Honor. It's a mere assumption of prosecution. ये एक धारणा मात्र है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जिसकी मोतियों को मेरे काबिल दोस्त ने अपनी कल्पना के धागे में पिरोया है, क्योंकि न्यायालय की अभी तक की कार्रवाई में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो बात स्पष्ट करता हो कि मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रीतम का आशय अपनी पत्नी की हत्या करना था। इतना ही नहीं, इस केस के गवाहों को सुनने के बाद एक बात तो तय है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रीतम एक शांत और धैर्यवान स्वभाव के व्यक्ति हैं। He is a man of calm and composed demeanor. अंधेरे में तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। योर ऑनर, वैसे ही हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय तो आता ही है जब हम अपना संयम खो देते हैं। ये खबर इतनी चौंका देने वाली थी कि मिस्टर प्रीतम भी अपना संयम खो बैठे, और वो अगर इस घटना के सिर्फ जिक्र से ही आपके सामने इस कोर्ट में झुंझला जा रहे हैं, तो हम ये सोच भी नहीं सकते उस रात पति पत्नी के बीच क्या हुआ। Objection, Your Honor. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये खबर दिल दहला देने वाली थी, और इसे सुनकर कोई भी इंसान अपना आपा खो सकता है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रीतम को ये खबर सुबह मिली, फिर भी उन्होंने शाम तक अपनी पत्नी से बात करने का इंतजार किया, उनके मुंह से सच सुनने का इंतजार किया, क्योंकि वो खुद को संभाल रहे थे ताकि वो गुस्से की आग में कुछ गलत न कर बैठे। This shows he has immense patience and he is mature enough to control his aggression. वो सुबह से लेकर शाम तक पेशेंटली एंड कामली इसलिए नहीं इंतजार कर रहे थे कि वो घर जाकर कुश्ती से सारी बात क्लियर करेंगे, बल्कि वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब घर पे कोई और ना हो और वो अपना काम बिना कोई सबूत छोड़े आसानी से कर ले। इट मींस सांप भी बढ़ जाए और लाठी भी ना टूटे। I object, Your Honor. अगर ऐसा ही था तो मिस्टर प्रीतम को रात 10 बजे के बाद ही अपने घर आना था, वो अपने नॉर्मल टाइम पे घर क्यों लौटे? योर ऑनर, इतना तो हम सभी को पता होता है कि अगर कोई अपने नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग घर नहीं जाएगा तो जरूर उससे सवाल किए जाएंगे। यही वजह थी कि मिस्टर प्रीतम भी ऐसे समय घर पहुंचे जिससे कोई उन पर शक की उंगली ना उठा सके और वो अपना काम आसानी से कर ले। जैसा कि आपने कहा, मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रीतम सुबह से सही मौके का इंतजार कर रहे थे, यानी वो मेड के जाने के बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो पुष्टि से बहस शुरू करते वक्त उन्होंने इतना एश्योर करना भी जरूरी नहीं समझा कि मेड घर पे है या वो जा चुकी है। योर ऑनर, शुरू से ही डिफेंस काउंसिल इस बात पे जोर देते आ रहा है कि उनके क्लाइंट मिस्टर प्रीतम घर जाकर पुष्टि से अकेले में सारी बात क्लियर करना चाहते थे, उसके मुंह से सच सुनना चाहते थे। तो बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने जरूर एश्योर किया होगा कि वो दोनों अकेले हैं और उनकी मेड जा चुकी है, और उसके बाद ही उन्होंने झगड़ा शुरू किया और बंदूक निकालकर पुष्टि पर गोली चलाई और उसकी जान लेने की कोशिश की। I object, Your Honor. अगर मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रीतम अपनी पत्नी की हत्या ही करना चाहते थे तो उन्होंने दोबारा गोली क्यों नहीं चलाई? My dear learned counsel, प्रीतम का केवल बंदूक निकालना ही ये जाहिर करता है कि उनका मकसद पुष्टि की जान लेना ही था। बंदूक निकालने में और उससे गोली चलाकर किसी की हत्या करने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए आपका ये कहना कि अगर कोई बंदूक निकाल रहा है तो वो किसी की हत्या ही करना चाहता होगा, यह आपकी केवल कल्पना मात्र है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी सामान्य व्यक्ति के बंदूक निकालने और उससे किसी की जान लेने में बहुत फर्क होता है। लेकिन आप ये बात ना भूलें कि मिस्टर प्रीतम घटना वाले समय किसी सामान्य अवस्था में नहीं थे, बल्कि वो बहुत बौखलाए हुए थे। Your Honor, prosecution has presented no evidence in this regard. It's a mere assumption of prosecution, and thus the prosecution fails to prove it. That's all from my side. I end my argument. Prosecution rests the case, my lord. Now I would invite both the counsels for their closing statements. Prosecution, you may proceed. I
Hifza Khatun is standing before you today as the public prosecutor in the case of a heinous crime that unfolded on 2 August 2020. In this case, the accused, in a fit of rage and premeditated malice, embarked a sinister plan that resulted in a tragic and untimely death of Mr. Krishna, an innocent man. In the morning of 2 August 2020, when accused got aware of all the facts, he felt agitated. He planned the murder of his wife and her son. In that series, he waited for the maid to leave the house to execute his plan so that no evidence could be found against him. He went to home at his regular time. He kept calm in his mind. Generally, around 10 p.m., when maid leaves the house, he starts to pass his statements aggressively that he will kill his wife and her son. In that series, he shot the bullet, but bullet missed the target and it hit Mr. Krishna, and Mr. Krishna died immediately. His complete intention was to kill his wife, but bullet hit Mr. Krishna. Thus, he committed culpable homicide by causing death of Mr. Krishna, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause. There is complete transfer of malice under Section 301 of Indian Penal Code. Thus, his acts falls under Section 302 of Indian Penal Code for causing death of Mr. Krishna. Under Section 307 of Indian Penal Code for attempting to cause death of his wife, Mrs. Pusti. And under Section 506 of Indian Penal Code for threatening his wife. Your Honor, हम एक जान की कीमत तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमने किसी अपने को ना खोया हो। चाहे गढ़ हो या अर्जुन, कुंती की ममता तो दोनों के लिए सामान्य ही थी। चोट चाहे किसी को भी लगे, दर्द तो आखिर कुंती को ही होता था। हम इस बात को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक माँ ने अपने बेटे को खोया है। आज न्यायालय का एक गलत फैसला उस माँ की ममता और उस मृतक की आत्मा को झकझोर के रख देगा और आम जनता का न्यायालय से विश्वास उठ जाएगा। Your Honor, I request Honorable Court to look accordingly. I rest my case. Defense, you may proceed. Your Honor, I, Sayyid Muhammad Faisal, stand before you as a defense counsel. हमारे रखे गए सारे तथ्य अधूरे व बेबुनियाद हैं। जैसे समुद्र में पत्थर मारने मात्र से नहीं आ जाती, उसी प्रकार कुछ भी कह देने मात्र से कुछ भी साबित नहीं हो जाता। In reality, for Krishna to look the gun in order and with intention to kill his so-called sister Pusti, who was not in favor of love relationship with Krishna. Prosecution witness court forensic expert also stated and confirmed that the fingerprint found on the blood were of Krishna, though the fingerprint present on the gun were of Pritam, but it doesn't make any relevance related to intention. The suicide note of Krishna also reveals this fact, but when he came to know he was going to kill Pusti, who was her mother, he flooded with guilt and decided to end his life instead. The fact that Krishna decided to end his life can also be inferred from the statement of Vaishali, who saw him jumping from the balcony and leave opposite to hers. So, the bullet that was loaded in Pritam's gun was actually loaded by Krishna, of which my client has no knowledge. There was no intention of Pritam to kill his wife or Krishna. Your Honor, without intention, there is no offense. On the day of incident, there was a fight between husband and wife, which was witnessed by maid, who saw Pritam holding gun and threatening his wife. After that, she went inside, during which the argument between them turned into a physical fight and gun got fired accidentally and negligently. The same can be proved by investigation officer who investigated the crime scene and found
that the height of shot bullet was too high for intentionally firing. Mr. Pritam has neither intention nor knowledge to kill his wife. The requirement of section 300 of Indian Penal Code is not fulfilled. There is no transfer of malice under section 301 of Indian Penal Code. Hence, my client should not be charged for 302 of Indian Penal Code. It might be possible that the bullet did not got fired if Pusti hadn't turned into a physical fight with Pritam, who even knew the fact that Pritam always kept his gun unloaded. In this incident, due to lack of intent, there is neither a murder nor an element of section 307 of Indian Penal Code. When Pusti argues with her husband, a gun accidentally got fired, and coincidentally at that moment Krishna jumped from the 9th floor and getting the shot. श्रीमान डॉक्टर अरमान सोलंकी के बयान से यह सिद्ध होता है कि यदि कृष्णा को गोली नहीं भी लगी होती तो भी 9वें मंजिल से गिरने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना ना के बराबर होती है। मेरे मौकिल द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उन पर लगे सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं। इन पर पूर्व में भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और वह कानून का पूरी तरह निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। न्यायाधीश महोदय, न्यायालय का यह स्थापित सिद्धांत भी है कि 100 आरोपी भले छूट जाएं, परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। That's all from my side. Thank you. I would request both the counsels to submit their closing statements in writing to the court, and the judgment will be pronounced in the next hearing. The court is adjourned. It is well said by Sir James Stephen in the Court of Justice. Both the parties know the truth. It is the judge who is actually on trial. Now, let's begin with the day court proceedings. The judgment day. सावधान! न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। राज्य में राम प्रीतम हाजिर हो। Today, the court is going to pronounce the judgment. The charges under section 302, section 307 and section 506 of the Indian Penal Code 1860 have been tried by this court against the accused Mr. Pritam, but after hearing both the parties and after considering evidences and witnesses during the trial, the court has reached the conclusion that the gunshot was fired by the accused without any intention of killing his wife during the course of heated arguments between them. Further, the gun mark found on the upper side of the window glass proves that the gunshot was fired by the accused Pritam only because of his negligent conduct. On the basis of these considerations, this court has been successful in reaching the conclusion that the prosecution couldn't prove its case beyond reasonable doubt to the extent the charges relating to section 302 and section 307 of the Indian Penal Code, and therefore the accused is acquitted from the charges framed under section 302 and section 307 of the Indian Penal Code. Apart from this, on the basis of the evaluation of several witnesses, evidences, legal reports and circumstances, it is proved that the accused is guilty under section 304A
of the Indian Penal Code for causing death negligently, and under section 506 of the Indian Penal Code for criminal intimidation beyond reasonable doubts, and therefore the accused is being convicted under section 304A and section 506 of the Indian Penal Code 1860. अभियुक्त प्रीतम के ऊपर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 307, 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया था, परंतु विचारण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय इस निर्णय पर पहुंची है कि अभियुक्त प्रीतम द्वारा बिना किसी आशय के एवं अपनी पत्नी से हुई झड़प के अंतर्गत गोली चली तथा खिड़की के शीशे के ऊपरी हिस्से पे लगी गोली द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त प्रीतम द्वारा गोली सिर्फ उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा चली थी, जिससे न्यायालय यह समझने में सफल है कि अभियोजन अपने आरोप को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 और 307 के संबंध में युक्त संदेह के ऊपर साबित नहीं कर सका। अतः अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 तथा 307 के अंतर्गत दोष मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त तमाम गवाहों, सबूतों, विधिक आख्याओं और परिस्थितियों के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 अ तथा 506 के अंतर्गत युक्त संदेह के ऊपर दोषी पाया गया, अतः उसे धारा 304 अ तथा 506 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। आज निर्णय खुले न्यायालय में श्रीमान न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं घोषित किया गया। Transfer of malice to the liable. The court is adjourned and the sentence will be pronounced in the next hearing. 304 तो वही वाला है। ये क्या था? सावधान! न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। राज्य नाम प्रीतम हाजिर हो। Punishment to the accused. In the interest of the justice and exercising the competent legal authority, the court sentences accused Mr. Preetham with 1 year of rigorous imprisonment under section 304A of the Indian Penal Code 1860 for the offences of causing death negligently, and 2 years of simple imprisonment under section 506 of the Indian Penal Code 1860 for criminal intimidation. Both the sentences shall be undergone simultaneously and no amount of fine has been imposed on the accused. न्याय के हित की रक्षा करते हुए तथा सक्षम विधिक अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय आरोपी प्रीतम को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 अ के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 506 के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास देती है। सभी सजाएं एक के बाद दूसरी के क्रम में चलेंगी और कोई आर्थिक दंड नहीं दिया गया है। The case rests here and the court is adjourned. And the echoes of emotions linger in the air, we find ourselves at the conclusion of the captivating journey that has unfolded before our eyes. The stage, once a canvas of possibilities, now stand as a testament to the power of storytelling.
hearing. As we bid farewell to this chapter, let us not forget the countless hours of dedication and passion poured into every rehearsal, every set design, and every line memorized. To the directors who steered the ship, and to the audience, the silent observers, whose presence had added another layer of significance to this performance. Thank you everyone, thank you so much. With this, I would like to request our Honorable Professor Ahmed Naseem sir for steering this event further. थैंक यू वेरी मच। हालांकि मेरा आना तय नहीं था, लेकिन इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ कतार में खड़े होंगे और वो आप हैंड माइक ले लीजिए। आप अपने आप को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरे ऑडियंस के सामने देंगे, अपना नाम बताएंगे, किस क्लास के आप स्टूडेंट हैं आप वो बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कार्यक्रम का ये हिस्सा राष्ट्रगान के साथ ख़त्म होगा। फिर एक सूचना मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि आपको कल भी आना है। कल आप डिपार्टमेंट में 9 साढ़े 9 तक, मैक्सिमम 9:30 तक आप आ जाएंगे यूनिफॉर्म में। वहाँ से हम लोग प्रोसेशन के साथ इस हॉल में फिर आएंगे। कल हमारा मेन फंक्शन है जिसमें ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट पधार रहे हैं और सबसे प्रमुख कार्य कल है और उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप इसी डिसिप्लिन के साथ, जो डिसिप्लिन आज आपने शो किया है, आप उसी डिसिप्लिन के साथ कल भी आप यहाँ मौजूद रहेंगे। तब जाकर के वही कार्यक्रम इस पूरे 2 दिवसीय इस पूरे समारोह का कल्मिनेशन है। और अभी कर्टन कॉल इसको कहते हैं, जिसको ड्रामेटिक्स की भाषा में, उस कर्टन कॉल के लिए मैंने इन बच्चों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये बच्चे बारी बारी करके अपना नाम और अपना क्लास बताएंगे और इनकी तारीफ में क्या कहा जाए। बस 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि सजाओ बज़्म दरे मैं कदा कुशादा करो। सजाओ बज़्म दरे मैं कदा कुशादा करो, उठाओ साज तरफ एहतमाम वादा करो, जलाओ चांद सितारे चराग काफी नहीं। जलाओ चांद सितारे चराग काफी नहीं, ये शब है जश्न की शब, रोशनी ज्यादा करो। थैंक यू। I'm Harsh Kumar Dubey. We have directed this whole drama, and we have also written drama. I, Shreya Pandey, of this year 9th semester, has played the role of SHO. I, Abhavya Singh, 4th year 7th semester, I played the role Defense Counsel. मैं हरिओम त्रिपाठी, BLLB 4th ईयर, मैंने स्टोरी नरेटर रखा। I, Akasha Singh, studied 9th semester, 5th year. I played the role of Defense Counsel. I, Vidisha, a student of 7th semester of BLLB, played the role of the Defense Counsel. मैं रमा सिंह, 7th सेमेस्टर की छात्रा, मैंने स्टेनोग्राफर की भूमिका अदा की है। I, Gini Pandey, student of 7th semester, I played the role of daughter of the accused. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। From 9th semester BLLB, I played a role as the lead. Good afternoon, everyone. My name is Hifza Khatun. I am a student of last year, 9th semester of BLLB, and I played the role of public prosecutor. Good afternoon, everyone. I, Sayyid Mohammad Faisal, a student of 4th year, 7th semester, and I played the role of Defense Counsel. Thank you. Good afternoon, everyone. This is
मैंने 23 करोड़ अदा किया है। Very good afternoon, everyone. I'm Priya Tripathi, student of BLLB 4th year, 7th semester, played the role of public prosecutor. Thank you. Good afternoon, everyone. I, Kaushlesh Singh of 7th semester, played the role of public prosecutor. Thank you. Good afternoon, everyone. I, Shreya Singh, student of 7th semester 4th year, BLLB, played the role of public prosecutor. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Utkarsh Singh, the student of 7th semester, BLLB. I played the role of judge, and thanks a lot. Good afternoon, everyone. I am Shivangi Shukla, student of 9th semester, 5th year. I played the role of queen. Jai Maharashtra. पड़ोसी नहीं मगर वफादारी खूब निभाता हूँ। वॉचमैन हूँ साहब, सबके काम आता हूँ। Good afternoon, everyone. I am Sagar Jubir, student of 7th semester BLLB. I acted as Dr. Aman Solanki. Good afternoon to everyone. I am Alik Krishna of BLLB 7th semester, 4th year. I played the role of prosecution witness 1, that is, revealing certificate. Myself, Rishabh Yadav from 7th semester and plays as a role of Pritam. अमृत कुमार राय, छात्र BLLB 7th semester, स्टेनोग्राफर। मैं आदर्श पांडे, BLLB 4th ईयर का छात्र, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल निभाया। इन सभी छात्रों के परिचय के बाद इनकी एक ग्रुप फोटोग्राफ इसी मंच से सभी छात्र बिल्कुल लाइन में हो जाए, इनकी एक फोटोग्राफ हो जाए। ये बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ा अवसर होता है। इनकी फोटोग्राफ्स ले ली है डिपार्टमेंट की ओर से।